لندن میں وزیراعظم عمران خان کے خصوصی مشیر برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری، مشیر برائے بیرونی سرمایہ کاری صاحبزادہ جہانگیر، رومی ملک، پی ٹی آئی کے دیگر عہدیدار اور سکھ رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے اور بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ چنگا ایفرٹس کیتا ہے کہ 15 اگست جڑا ایک بلیک ڈے ہے کشمیریاں تے سکھاں واسطے، ایک کالا دن ہے، تے تسی ایتھے آئے ہو یہ دسن کہ اسی کشمیر دے نال بالکل برابر کھڑے انہاں دے دکھ دے وچ۔ پریس کانفرنس اور میڈیا سے گفتگو میں زلفی بخاری اور دیگر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ بی جے پی انتہا پسند جماعت ہے، اس لیے اس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی۔ آج ہونے والا احتجاج دنیا کو بتا دے گا کہ پاکستان کا کشمیر پر کیا موقف ہے۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز اس میں شرکت کریں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضروری اس لیے کیونکہ ہمیں باہر رہتے ہوئے ہمیں تو اندازہ ہے کہ باہر کے پروٹیسٹ کتنا افیکٹ کرتے ہیں ملکوں کو۔ ایک تو ہو کہ پروٹیسٹ پاکستان کے اندر ہو، لیکن اس میں پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ آج بڑا اچھا ریلیز نکلی تھی ماشاءاللہ، بہت زبردست احتجاج ہوا تھا پاکستان میں، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اکراس دا بارڈر اور جگہوں پہ پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ جی اپنے پاکستان میں ہوا ہے تو ویسے ہی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب باہر پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ پوری دنیا دیکھتی ہے۔ انتشار پھیلانے کے لیے بھارتی انتہا پسند بھی بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج میں پہنچیں گے۔ تصادم کے خطرے کے پیش نظر پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ متوقع طور پر بھارت کے خلاف برطانوی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا۔ برطانیہ بھر سے سینکڑوں بسوں پر کشمیری اور پاکستانی اس مظاہرے میں شرکت کریں گے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر آج کشمیری یوم سیاہ منانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا۔ برطانیہ میں مقیم تمام کشمیری اور پاکستانی سیاسی جماعتیں اس مظاہرے میں شرکت کریں گی۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بھارتیوں نے بھی بھارت کے حق میں مظاہرے کا اعلان کر رکھا ہے، جس پر پولیس اور دیگر اداروں کو خدشہ ہے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس نے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بڑا احتجاج ہوگا اور تصادم کا بھی خطرہ ہے، جس کے پیش نظر سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ ویلز میں یوم آزادی کا بڑا اجتماع ہوا، جس میں کارڈف کے سرکردہ رہنما شریک ہوئے۔ پنڈال جان جان پاکستان دل دل پاکستان کے ترانوں سے جھوم اٹھا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں پاکستانی عوام اور برطانوی کمیونٹی اور ایم پیز نے شرکت کی۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ آزادی کے اس جشن کو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے نام کرتے ہیں۔ کشمیر کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا اور وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر کو آزادی اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم جو کشمیر کے بیچ میں اٹروسٹیز ہو رہی ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ، ہم اس کے بارے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے۔ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے یونائٹڈ نیشنز کے بیچ میں، اس پہ ساری کی ساری سیکشنز جو ہیں ابھی موجود ہیں۔ انڈیا کا ایک 370 ہٹا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچوں نے خوبصورت نغمے پیش کیے اور پاکستانی اور کشمیر کے جھنڈے زیبتن کر رکھے تھے۔ پاکستانیوں کی خوشی میں یو کے پارلیمنٹ ایم پی جیسیکا مارڈرن، یو کے پارلیمنٹ ایم پی کیون برینن، پولیس کمشنر ساؤتھ ویلز ایلین مائیکل، پولیس چیف کانسٹیبل کارڈف اسٹیو جونز نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ آخر میں کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ ویلز کے محب وطن پاکستانیوں کا جذبہ یوم آزادی کے حوالے سے کافی پرجوش ہے، اور ساتھ ہی اظہار یکجہتی کشمیر پر لوگ کافی رنجیدہ ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ظلم و بربریت کی سیاہ راتیں جلد ہی انشاءاللہ العزیز کامیابی کے سورج کے ساتھ طلوع ہوگی۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، کارڈف۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں پاکستان کے 72ویں جشن آزادی کے سلسلے میں بریڈ فورڈ کونسلیٹ کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی رہنماؤں ڈپٹی لارڈ میئر بریڈ فورڈ کونسلر شبیر حسین، سابق لارڈ میئر بریڈ فورڈ ظفر علی اوان، سابق لارڈ میئر غضنفر خالد، سابق لارڈ میئر عابد حسین جماعتی اور کونسلر کمران حسین کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ پرچم کشائی کونسل اتاشی محمد افضال نے کمیونٹی ممبران کی موجودگی میں کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ کونسل اتاشی نے صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے
आए और केक भी काटा गया। नन्हे सिपाही ने सलामी पेश की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शुरका का कहना था कि हम दियारे गैर में हैं मगर हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। जश्न आज़ादी के इस मौके पर हम पाकिस्तान के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं, मुसलमान बसते हैं, सबको जश्न आज़ादी का मुबारकबाद देते हैं। और कश्मीरियों, और ये दिन हम कश्मीरियों के नाम करते हैं और कश्मीरियों को ये बावर कराते हैं कि हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह उनकी आज़ादी के लिए आखिरी दम तक जो है साथ रहेंगे। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू celebrate this day here in Bradford, and I would like to give a dua for my country, that is खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। ये वो दिन है जो पाकिस्तान के महाजरों का दिन है, ये वो दिन है जो कश्मीर में आज जिस कौम की जेनोसाइड हो रही है, मोदी वहाँ कत्लेआम कर रहा है। हमारा मैसेज यही है तमाम पाकिस्तानियों से कि ये वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक का है और मिलकर इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तानी कौम ने अपनी कश्मीरी बहन और भाइयों का साथ देना है। और इंशाअल्लाह मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जल्द ही जिस तरह की कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, आज़ादी हमारे कश्मीरी बहनों और भाइयों का मुकद्दर होगा। इस मौका पर यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम मुख्तसर मुशायरा भी पेश किया गया, जिसमें कश्मीर के हवाले से खुसूसी नज़में भी पेश की गयी। You can sentence me to death, but I'll smile and I'll sing and I'll dance my way to the gallows. तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से खुसूसी दुआ भी की गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। कैमरा टीम के साथ वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर वाशिंगटन में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुई। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने जब कौमी तराने की धुन पर परचम फिजा में बुलंद किया तो शुरका के चेहरे तमानियत से रोशन हो गए। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी सफीर ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया। दोनों रहनुमाओं का पैगाम में कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का समर मिलना शुरू हो गया है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी से बैरूनी सरमायाकारों में एतमाद पैदा हुआ है। उन्होंने कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय जारियत की भरपूर तरीके से मजम्मत की। आप सबको आज पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन जो है वो ख़ास तौर पे अहमियत का हामिल है। और अभी आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के पैगाम सुने। मेरा ख्याल उन दोनों पैगाम में जो हमारी लीडरशिप की प्रायरिटीज़ हैं उनको बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया गया है। इसके बाद यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया और मेहमानों की तवाज़ुक की गई। न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी कौंसल खाने में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी ने परचम फिजा में बुलंद किया। इस तरह शिकागो और बूस्टन में कायम पाकिस्तानी कौंसल खानों में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया गया। दुनिया भर की तरह स्पेन में भी यौम आज़ादी के मौके पर मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें वतन अजीज से मोहब्बत के बेलौस जज्बे, आबा की कुर्बानियों के तज़किरे और वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे का अज़्म और वलवले देखने से ताल्लुक रखते हैं। अब के बार यौम आज़ादी की तकरीबात में मजलूम कश्मीरियों और उन पर ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम और मोदी सरकार के नए हथकंडों की मुजम्मत और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती भी तकरीबात का हिस्सा है। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में सफारत खाना पाकिस्तान में अम्बेसडर खयाम अकबर ने परचम कुशाई की, जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। कौंसल खाना बार्सिलोना में जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है, परचम कुशाई की तकरीब में बड़ी तादाद में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। परचम कुशाई की तकरीब में कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी और मारूफ पाकिस्तानी सहाफी और मेजबान फहद हुसैन ने सब्ज हिलाली परचम को हवाओं में लहराया। अली इमरान चौधरी, फहद हुसैन और स्पेनिश मेहमानों ने भी खिताब किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। तमसिन बच्ची इकरा इमरान ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ कश्मीरियों से यकजहती के लिए अपने मासूमाना जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। So please, India, give them freedom.
तकरीब में मकामी आर्टिस्ट की बनाई गई पेंटिंग्स, जिन पर कश्मीरियों की जदोजहद की दास्तान बयान की गई थी, और यौम आज़ादी के हीरोज की तस्वीर भी लोगों की तवज्जो का मरकज रही। मैं अपनी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान को यौम आज़ादी 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर को मिलाकर एक अजीम कौम बनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 14 अगस्त का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है, और आज के दिन मैं अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं मकबूजा कश्मीर के अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द आज़ादी नसीब करे। जो जुल्म कश्मीर पे हो रहा है हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, उस माहौल में आज जो है किसी भी किस्म का ऐसा प्रोग्राम धड़ल्ले से मनाना जो है वो सच्ची बात है भी जी नहीं कर रहा था। और हम अपने कश्मीरी भाइयों की इस जद्दोजहद के साथ बिल्कुल साथ हैं, और चाहे उसमें हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इस यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर के भाइयों को मत भूलें। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और ये बच्चों की मेंटली डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और इससे जज्बा हुब्बे वतनी भी पैदा होती है। आज यौम आज़ादी के हवाले से कॉन्सर्ट बार्सिलोना में प्रोग्राम किया गया। मेरे ख्याल में ये बाहर पाकिस्तान से बाहर रहते हुए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन दिनों को जोश जज्बे के साथ मनाएं। आखिर में फनकारों में असनाद तकसीम की गईं, जबकि आज़ादी का केक भी काटा गया। मेहमानों की तवाज़े रिफ्रेशमेंट के साथ करने का इंतजाम भी था। यौम आज़ादी की ये तकरीब कश्मीरियों से यकजहती का इजहार भी थी। शुरका का यही कहना था कि कश्मीर से अपना रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। इस वक्त हम भारतीय हाई कमीशन कोलंबोर के सामने खड़े हैं। यहाँ पर मापीन मलेशिया के चेयरमैन हाजी आज़मी अब्दुल हमीद की सरबराही में 157 से ज़ायद ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत को एक पेटिशन जमा करवाई है, जिसमें उसे मुतालबा किया है कि 370 की क्लास फ़ौरन बहाल करें और कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत वापस दे। इस वक्त हम मापीन के चेयरमैन के साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये पेटिशन जमा करवाई है। सर, व्हाट इज़ द डिटेल्स अबाउट पेटिशन यू हैव जस्ट सबमिटेड टू Indian High Commission? Yeah, we have several points, but the major ones that number one is the demand so that the abolition of the 370 article and 35A must be reinstated. We are demanding that this decision is unconstitutional. It is also a unilateral action, and that cannot be accepted, and it has to be reinstated. Number two, we were demanding that this lockdown and the clamping of the people and the area of the disputed area is now under besieged. That has to be dismantled. The people has to be given the freedom to move, and because they are suffering because of inaccessibility of so many things, even food and medicine. We are also demanding in that petition that all the troops must withdraw. It has created a nightmare for people. Brutality is starting to happen. The barbaric way military is acting and on the people can be seen, and we are saying that this must go. The United Nations Security Council must come in and forcibly withdraw all the Indian troops, and peace and order must be maintained by the peacekeeping troops of the United Nations. We are also demanding that all the detainees that's now under detention because of this action by India, they must be immediately released, and they cannot be allowed to be incarcerated in such a manner, because this is unlawful, this is against human rights, against international law. So those are the main things. दातो अब्दुल हमीद आज़मी अब्दुल हमीद हमें मज़म्मती करारदाद की तफसील बता रहे थे। यकीनन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन की डेनमार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जीक्यूटिव बॉडी से मुलाकात। कश्मीरियों पर जारी मुजालिम से आलमी दुनिया को आगाह करने समेत अहम मामलात पर मुशावरत की गई। मुलाकात में साबिक तहसील नाज़म गुलाम अहमद जुमुर्द, सुहेल सदीक, राजा बाबर फारूक, अली सिंधु, खुर्रम अल्ताफ, ज़हूर चौधरी और दीगर शरीक हुए। फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी सफीर जुल्फिकार गिरदेजी और PTI एग्जीक्यूटिव टीम के हमरा डेनमार्क
की पार्लियामेंट का भी दौरा किया और पाकिस्तानी निजात नौ मुंतखब मेंबर सिकंदर सिद्दीक से मुलाकात की। इस आने की दावत दी है ताकि डेनमार्क और पाकिस्तान के दरमियान मईशत को फरोग दिया जा सके। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।